बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर. So, assalamu alaikum to all participants. My topic, which I will be covering in my slides and presentations, are number 1 is condolence letter and number 2 are neutral messages, which includes announcements and more than I will discuss that in detail. So, in condolences, next slide please. In condolences, condolence means simple expressing sympathy to any person. Like a condolence letter is a letter we write to anybody, like friends को लिख दिया, colleagues को लिख दिया, within the organizations or organizations लिख दिया, for the occurrence of sad events, like किसी की जॉब का लॉस हो गया है. नॉट जस्ट नेसेसरी जब हम लोग कॉन्डोलेंस का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि यार किसी की डेथ हो गई. नॉट एट ऑल. जॉब की लॉस हो गया, बिजनेस में किसी को लॉस हो गया है या किसी को सिक है, तो उस पर भी हम लोग कॉन्डोलेंस लेटर लिख सकते हैं. मोर ओवर कॉन्डोलेंस लेटर इज दैट नॉट मच ईजी टू राइट. लाइक कभी कभी दुख इतना ज़्यादा होता है इंसान को कि उसे शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते. नेक्स्ट स्लाइड. So that is the sample of condolence letter, like how to write. This is like this. It's like dear XYZ, and first para is the closing para, sincerely named. Next slide please. In first slide of a condolence letter, we have to write first paragraph, like I am writing to extend my deepest sympathies. In first paragraph, just give your sympathies to the member you are writing to a letter. Okay, the next one is I had honored the pleasure that कि मैं यार आपके हस्बैंड या आपके किसी को भी जानता था, वो बहुत अच्छे किस्म के इंसान थे और उन्होंने हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. नेक्स्ट वन, द लास्ट क्लोजिंग सैम्पल पैराग्राफ. एंड में आप मुझे ये बोलो कि यार इफ यू नीड समथिंग फ्रॉम माय साइड देन आई विल हेल्प यू इन ऑल काइंड्स ऑफ एनीथिंग लाइक नेक्स्ट. So, before moving forward, I would like to add something that selection of words in condolence letter is very much important. Like praying that God grants peace to the soul of your dearly departed. You can use these kinds of words in condolence letter. इससे क्या होगा कि आप उसकी जो है ना थोड़ी हिम्मत बनेगी. Next slide please. हाँ तो न्यूट्रल मैसेजेस पर आते हैं जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है. न्यूट्रल मैसेजेस इंक्लूड टू थिंग्स. Number 1 is announcements and number 2 is transmittals. I will discuss announcements in each and everything of announcements in detail. Next slide please. Good news plan works for most kinds of announcements. Announcements mostly जो है ना वो good news sense में होती हैं. Bad news में भी होती होगी, but mostly in good news. Like there is a doctor, he is saying good news everyone. He is coming from operation theatre and saying good news everyone. अब आप लोगों को पता है कि good news तो क्या होगी? But good news announcement, bad news भी हो सकती है. Like neutral message, for example, किसी का इंतकाल हो जाता है फलाना खासा तो मस्जिद में ऐलान होता है फलाना का नमाज़ जनाजा. But main thing is tone. टोन का डिफरेंस होता है. अब डॉक्टर आएगा, बात खुशी से आएगा, ये आपके बेटा पैदा हुआ या आपकी बेटी पैदा हुई, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया. बट मस्जिद में जो है ऐलान वो डिफरेंट टोन में होता है कि डिफरेंट यू नो ऑल अबाउट दिस. नेक्स्ट प्लीज. Structure of announcements. While doing the announcements, we have to keep 3 things in our mind. Number 1 is the main idea. Number 2 is followed by adequate explanation. जो कि हम लोगों ने मेन आइडिया दिया है उसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन करें ताकि जो पढ़ रहा है या सुन रहा है उसे एग्जैक्टली समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. The next one is ending with pleasant and positive manner. जब खत्म करो तो जो पढ़ रहा है उसके दिमाग पे एक ऐसा नक्श छोड़ दो कि पता लगे उसको कि यार आप लोगों ने बात क्या की है. Next one. Announcements. Announcement includes these things. Announcing sales and events, procedures, possibilities, responsibilities, orders and activities. Next slide please. Like, while announcing sales and events, we have to keep these 5 W's in our mind. क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब कुछ हम लोगों के दिमाग में मौजूद होना जरूरी है. क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर परचेज करेगा उसे पता हो कि यार हम क्यों परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, कहाँ परचेज कर रहे हैं, कैसे परचेज कर रहे हैं. नेक्स्ट वन. Announcing sales and events. Mostly people are doing like salesmen are doing immediate action. अब mostly अगर किसी को अपनी चीज जल्दी से फरोख्त करनी है तो he will do immediate actions like what to do. He take 20% off on clothes. Like लड़कियां तो mostly भागती हैं कि यार साड़ी की सेल लगी है, किसी और की सेल लगी है. Providing details about the product. जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स दो. Like we have 2 piece or 3 piece shirt.
किड्स का अलग जोन है, लेडीज का अलग जोन है. We have all kinds of colors and varieties. Next time, next very interesting. Like different kinds of dresses from formal to casual. आप अपने आउटलेट पे ये बाहर आजकल तो ये हो गया ना कि फॉर एग्जाम्पल ARI ज्वेलर्स ने लगा दिया, बैरियटाउन वाले ने ऊपर जो है वो बड़ी सी एक LED स्क्रीन लगा दी है जिससे वो अपनी प्रमोशन कर रहा है. ठीक है, इसी तरह आप इसकी पिक्चर आप बाहर लगा दें कि हमारे यहाँ ये किया जाता है परचेज और सेल, और जी ये सी है. बट अब कौन होगा जो सुपरस्टार्स को फॉलो नहीं करता? मोस्टली तो जो सुपरस्टार्स को फॉलो कर रहे होते हैं. एक दिन मूवी आती है, अगले दिन वही फैशन बाहर होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन. Here different kinds of sarees, there are different kinds of sarees with different kinds of color. Next one. So, what is the easy actions for motivation? How to motivate a customer towards itself? कैसे मोटिवेट किया जाए कि यार हमारी चीजें परचेज कर लो? मेन थिंग इज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिमिटेड टाइम ऑफर. कह दो कि भाई ये चीज जो है वो एक हफ्ते के लिए, इसके बाद ये हमारे पास ये लिमिटेड स्टॉक है, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, और मोर 20% ऑफ, 30% ऑफ, और मे बी और भी बहुत सारी चीजें. लेकिन ये दीज आर द मेन थिंग्स फॉर फर्स्ट चॉइस एंड सुपर सेविंग्स. नेक्स्ट टाइम प्लीज. So, announcing procedures, possibilities and responsibilities. While announcing procedures and possibilities, we have to keep two things in our mind. First thing is clarity of tone. हमारी जो टोन हो वो क्लियर हो कि सबको समझ आ रही हो. टोन में लैंग्वेज भी आ सकती है हमारी, और बोलने का अंदाज़े बयान भी आ सकता है. नेक्स्ट वन इज अवॉइडिंग द थ्रेटनिंग टोन. लाइक किसी को यार कोई भरम ना दे, यार अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से फाइट करूँगा. पॉलिसीज में कभी भी थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, वरना एम्प्लॉयर जो है वो डिस्करेज होता है कि यार ये ऐसी कंपनी हमें डिस्करेज कर रही है. नेक्स्ट टाइम प्लीज. Mostly people mixing policies and procedures together. If they are mixing it, then there is a big no. Why no? I will explain it. Mostly people are very much disturbed about the policies of a company. Next slide please. After reading the policy, people have different questions in their mind कि यार ये क्या लिखा है. हम तो पॉलिसीज पढ़ते भी नहीं है. आप लोगों ने पढ़ी कभी पॉलिसीज बैठ के KU के जब फॉर्म दिया था उस पर क्या पॉलिसीज लिखी? बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आए थे कि यार ये क्या है, हमने पढ़ी भी नहीं, पढ़े बगैर साइन कर दिया, अब्बा का साइन करा दिया एंड ऑल दैट. नेक्स्ट स्लाइड. जैसे निकला लेट्स गेट क्लियर. बात हो रही है हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पे. नाउ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. लाइक so let's get clear everybody. Next slide please. Policies are the standards and guidelines set by the organizations or companies for the employees, whereas procedures are tasks and actions, which means how to, like what to be done, what is the procedure, task and actions for the employees. Let's take an example. जरा मुश्किल बात हो रही है, एग्जाम्पल से इसको जरा करने की कोशिश करते हैं. ओके, ये तो एग्जाम्पल है, ये तो जरा मुश्किल सी, कोई आसान सी करते हैं आप लोगों के लिए. एनटीएस सबने दिया था जहाँ के सब पास होके अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं. ठीक है, एनटीएस पास करने से पहले आप लोगों ने फॉर्म लिया होगा. ठीक है, फॉर्म सबमिट कराया होगा. फॉर्म सबमिट कराने के बाद आप लोगों ने फिर टेस्ट दिया होगा. तो उसके बाद आप कहीं जाके सिलेक्ट हुए. तो ये हमारा क्या है, प्रोसीजर है. ठीक है, बट केयू ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया या गाइडलाइन सेट कर दी या पॉलिसी सेट कर दी जिसे कह सकते हैं. लाइक 50% वाला जो है वो पास होगा, फर्स्ट और सेकंड डिवीजन वाला जो होगा वो एलिजिबल होगा पेपर देने के. दीज आर द पॉलिसी. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स बट next slide. Policies are like just there is a key concept I wrote. Policies and procedures are related to each other but distinct. Moreover, one policy may have several how-tos. I told you how-tos are the procedures, okay? Like standards and guidelines. And one procedures may have several policies. अगर हम ये सोचते हैं कि एक पॉलिसी का सिर्फ एक ही प्रोसीजर होगा तो नो, तो ये गलत कंसेप्शन है. ठीक है, एक पॉलिसी के बहुत सारे प्रोसीजर्स हो सकते हैं और बहुत सारी पॉलिसीज के एक प्रोसीजर भी हो सकता है. नेक्स्ट वन. Like this is the concept. Keep them separate. Policies and procedures are two different things. Keep that separate but link them together. Next time. Now this is the last topic of mine. Characteristics of a good policy. How should be the good policy? Good policy कैसी होनी चाहिए? कंपनीज को कैसे बनाना चाहिए? The 5 points I chose are:
पॉलिसी मस्ट बी नोन एंड अंडरस्टूड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबको समझ आनी चाहिए कि यार इसमें लिखा हुआ क्या है। नेक्स्ट, पॉलिसी शुड बी स्टेबल। ये नहीं कि यार 1 महीने बाद फिर चेंज कर दी, 2 महीने बाद फिर चेंज कर दी। ये पॉलिसी सर डिस्टर्ब होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। अभी हमारी बात हुई जैसे ड्रिल में के वो एक ही पॉलिसी पढ़ता तो 1-1 महीने बाद ही क्या पड़ेगा। सो पॉलिसी शुड बी स्टेबल। नेक्स्ट वन, पॉलिसी मस्ट बी कंसिस्टेंट टू ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अपर लेवल के लिए कोई और लॉ है, मिडिल लेवल के लिए कोई और लॉ है, लोअर लेवल के लिए कोई और लॉ है। ऊपर वालों के लिए बाथरूम साफ है, बीच वालों के लिए बाथरूम में पानी नहीं। पॉलिसी मस्ट बी सिंसियर होनी चाहिए। पॉलिसी ना सबके लिए, लाइक ये नहीं हो कि यार वो मेरा फेवरेट बच्चा है, ठीक है, उसको मैं ज्यादा नंबर दूं, ये मेरा पॉलिसी मस्ट बी रियलिस्टिक। जो अचीवेबल गोल्स होंगे हमारे उसे हम लोग सेट करें। यार ये नहीं जो अनअचीवेबल गोल है, ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नहीं है, इमेजिनरी गोल है, बॉस ने ऐसे सेट कर दिया, तो पॉलिसी शुड बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक अप्रोच में होनी चाहिए। ये ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन के वो गोल्स में आई न रहो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत